Hello everyone, welcome to Target IES. Now I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019 and also got selected in ONGC. But I haven't joined this organization, so I just want to spend time here with my family. So because of that, nothing against the ONGC. Now, जो heat exchanger है, the topic that we are going to discuss in this lecture is heat exchanger. We will need at least 2 to 3 lectures to complete this topic, heat exchanger. So in this we will talk about the basics and what is heat exchanger, and you will understand that whatever the theoretical question that will come through this topic, heat exchanger, is 50 to 60% will be covered in this lecture only. Okay, so please do not get bored or so much आएगा. So first of all, what is heat exchanger? By name you can understand that there is something in exchange, right? So what is in exchange? That is heat. So if we see where is in which two people or two things the heat get exchanged. So here there is one hot fluid, okay, on अदर वन इज कोल्ड फ्लूइड, एंड हीट एक्सचेंज उनके बीच में हो रहा है. हीट एक्सचेंज हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में भी होता है. अगर हम देखें, अगर आप काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, ओके, देन आवर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? जो हमें स्वेट आता है, एवोपरेशन जो कूलिंग होती है, वो हीट एक्सचेंज का ही तो एक टाइप है कि जो एयर है वो आपके स्वेट को एवोपरेट कर रही है. सो द हीट इज गेटिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो आपकी बॉडी ने हीट लूज किया उस एवोपरेशन से, ओके, तो उसी को तो हम एवोपरेशन कूलिंग कहते हैं. हर जगह हीट एक्सचेंजर है, एवरीथिंग इज हीट एक्सचेंजर, राइट? अगर आप एक बॉडी को, एक कार को बिल्कुल बंद करके छोड़ दें और बहुत गर्मी है, तो अंदर गर्म कैसे हो जाता है? हीट एक्सचेंजर, इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ऊपर से गर्म हवा बह रही है, अंदर नॉर्मल और स्टेडी हवा है, जो कि धीरे धीरे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार की वॉल है वो गर्म होगी, देन उससे हीट लेकर अंदर वाला गर्म होगा, एयर. सो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, राइट? So we are not going to discuss everything in heat exchanger. There are some basic heat exchanger that is used in the production or manufacturing, okay, or power plant, mainly in power plant. So वो चीज़ें हम पढ़ेंगे. So first let's see, this is a system boundary, okay. The hot fluid enters in the system and initial temperature, this is the notation that I will use throughout this. So initial temperature is denoted by THI for the hot fluid, and final temperature is THE. Similarly, cold fluid enters and leaves. So cold fluid internal initial temperature is TCI, and exit temperature is TC. If you see that THI is greater than THE, right? Because hot fluid loses the heat, and TCI is less than TC because cold fluid gain the heat. So ये जो system है, इसमें कुछ assumptions हैं. There is no work done, right? So work done is zero. In flowing a fluid there is no work done, and heat transfer from the surrounding and in the system नहीं, यहाँ से कोई heat transfer का exchange नहीं है. So इसलिए heat transfer is zero. Whatever heat exchange takes place is in between cold, hot and cold fluid. hot fluid का mass mh मान लेते हैं, cold fluid का mass mc मान लेते हैं, m dot c. सो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी के ऊपर आए के जितने डेरिवेशन हैं, वॉट एवर न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. ओके, सो ये नोटेशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस नोटेशन, ताकि काफ़ी ईजी हो जाए. ये सिस्टम बाउंड्री है, मैंने लिख रखा है. प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम, वेरी इजी डायग्राम, बहुत ज़्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पर कुछ एजम्पन्स हैं. फर्स्ट एजम्पन इज इट इज़ अ स्टडी फ्लो. सेकेंड एजम्पन इज स्टडी फ्लो मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट चेंजिंग, ओके, और टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड एट अ सर्टेन पॉइंट इज नॉट चेंजिंग. जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे इस पॉइंट पे, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जो यहाँ से एक इतना सा फ्लूइड आया, वो जब यहाँ पर आएगा तो मान लीजिए उसकी 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी. तो इस पॉइंट पे जो भी फ्लूइड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. यहाँ पर भले ही 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बाहर आते ही 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आते आते, बट इस पॉइंट पे वो 70 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. सो स्टडी मीन्स इट डजेंट मीन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ओके. जैसे हमारी फैमिली में अगर मैं बोलूँ कि यू हैव अ स्टडी इनकम, योर फादर इज अर्निंग 50,000, मान लीजिए योर ब्रदर इज अर्निंग 40,000, यू आर नॉट अर्निंग. आफ्टर अ 1 year ऑल्सो योर फादर इज अर्निंग 50,000, योर ब्रदर इज अर्निंग 40,000, एंड यू आर जस्ट स्टडिंग. सो स्टडी इनकम है वहाँ पर. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पापा, आपके भाई और आपकी इनकम सेम है. स्टडी डजेंट मीन दैट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एवरीथिंग इज सेम, नो, ओके.
So first of all, it is a steady flow. Okay, it is a adiabatic system. Adiabatic system, so no heat exchange with between the surrounding and system. It is an open system, right? Open system. ओपन सिस्टम मीन्स फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कोई एक ही बॉडी नहीं है, फ्लूड एक ही नहीं है, फ्लूड आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है. सो ओपन सिस्टम. एंड रिमेंबर, वेन एवर देयर इज अ फ्लो इन एनी ट्यूब और हीट एक्सचेंजर, हम वहाँ पर कोई लॉसेस नहीं मानते, वी डज नॉट कंसिडर एनी लॉस. सो द प्रेशर रिमेन्स सेम. प्रेशर का जो लॉस होता है फ्लूइड में होता है व्हेन अ बॉडी व्हेन अ फ्लूइड मूव इन द ट्यूब और वेयर एवर, सो वो हम कंसिडर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, राइट. सो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये तीन एजम्पशन है, स्टडी फ्लो, एडियाबैटिक एंड ओपन सिस्टम, प्रेशर रिमेन सेम. ओके, नाउ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल हीट एक्सचेंजर के? सरफेस कंडेंसर. हाउ व्हाट इज सरफेस कंडेंसर? स्टीम. सरफेस कंडेंसर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप ठंड के मौसम में देखेंगे तो जो हमारी खिड़की होती है उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. वाई ड्रॉपलेट्स? क्योंकि एक साइड ठंडी है एक साइड गर्मी है, एक साइड एयर में मॉइस्चर है, सो मॉइस्चर गेट कंडेंस्ड, सो वो सरफेस कंडेंसर है. सरफेस कंडेंसर इज ऑल्सो यूज्ड इन द पावर प्लांट. ओके, तो इस टाइप से होता है कि यहाँ से कोल्ड फ्लूइड हो रहा है, बाहर आपका स्टीम है, सो ड्यू टू दिस कोल्ड फ्लूइड स्टीम गेट कंडेंस्ड और वो डिपॉजिट होता है इसके ऊपर. व्हेन द ड्रॉपलेट बिकम्स क्वाइट लार्ज तो वहाँ से चला जाता है. तो ये एक शेल एंड ट्यूब टाइप का है. देन इकोनोमाइजर हमें पता है कि वी यूज़ हॉट फ्लू गैसेस टू फीड वाटर. इकोनोमाइजर में हॉट फ्लू गैसेस वाटर को हीट करता है सो दैट जो हॉट फ्लू गैसेस के साथ जो हीट का लॉस हो रहा था वो लॉस कम हो जाए. तो इफिशियंसी जो होती है और इफिकेसी ऑफ द पावर प्लांट और दैट सिस्टम इंक्रीजेज. नाउ सुपर हीटर इज ऑल्सो हॉट फ्लू गैसेस टू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. हमने स्टीम टेबल में जब आप पढ़ेंगे आरएसी में, रैंकाइन साइकिल वगैरह में, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी. देन कूलिंग टावर मैंने आपको ऑलरेडी शो किया था, वहाँ पर भी यही हो रहा है कि हॉट वाटर का स्प्रे हो रहा है, कोल्ड एयर जा रही है, कोल्ड एयर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द हॉट वाटर और वो कूल करता है. देन जेट कंडेंसर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम टाइप, हॉट स्टीम जो कि वाटर को कूल टू कूलेंट वाटर यहाँ पर करते हैं. ठीक है, देन ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हो गए. ओके, देन यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? व्हेनेवर देयर इज ए हीट ट्रांसफर, तीन थर्मोडायनेमिक्स लॉ में एक लॉ तो एप्लीकेबल हो गई. सो और तीनों एप्लीकेशन लॉ एप्लीकेबल होगा, तीनों लॉ एप्लीकेबल होगा. तो हम फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हमें पता है Q इज इक्वल्स टू एनर्जी प्लस वर्क. So I have already told you there is no heat exchange between the surrounding in the system, adiabatic system, so this is zero. No work transfer, so this is zero. The energy, total energy को मैं कैसे ले सकता हूँ? Enthalpy plus kinetic change in enthalpy, मतलब change in energy of the fluid is change in enthalpy plus change in kinetic energy plus change in potential energy. There are other energy also, पर हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. सो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज जीरो है. सो डेल्टा एच हमें यहाँ से पता चल गया, डेल्टा एच इज जीरो, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो ऑफ द सिस्टम. ओके, तो वहाँ पर एक चीज़ तो हमें पता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, सम एंथैल्पी ऑफ समथिंग डिक्रीजेज, एंथैल्पी ऑफ समथिंग इंक्रीजेज, बट ओवरऑल द सिस्टम एंथैल्पी रिमेन्स सेम. So delta H of hot fluid and delta H of cold fluid, because in the system there hot fluid and cold fluid is there, so that is zero. So we can write it like this: decrease of enthalpy of hot fluid is equals to increase of enthalpy of cold fluid, right? So अगर मैं enthalpy को लिखना चाहूँ तो mCp, यहाँ H है means this is of hot fluid, Thi minus Th naught, Thi is greater than Th naught, and m dot Cp C means this is फॉर कोल्ड फ्लूइड, Tc एग्जिट माइनस Tc. मैंने बोला था सेम नोटेशन यूज करूंगा. सो एंथैल्पी को यही लिखते हैं ना, एंथैल्पी mCpt, चेंज हो जाएगा तो डेल्टा T. ओके, सो ये आ गया यहाँ पर. अब ये चीज़ें, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है. ओके, सो यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी बैलेंस तो रहेगा ही, और अगर आप Cp कभी कभी होता है, जनरली वी यूज़ वाटर, तो Cp ऑफ वाटर यू शुड रिमेंबर, ओके, 4.186 किलो जूल पर kg Kelvin, एंड Cp ऑफ एयर, these two Cp you should remember 1.005 किलो जूल पर kg Kelvin. Okay, now also it should also hold continuity equation. Continuity equation is regarding the fluid. जितना फ्लूइड आ रहा है उतना फ्लूइड जा रहा है.
ओके ऐसा नहीं है कि बीच में कोई फ्लूइड को चेंज कर रहा है या ले रहा है। तो m डॉट इज रो ए वी के जी पर सेकेंड। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन वर्क डन इज जीरो, q चेंज इन एंथैल्पी। आइसोबैरिक प्रोसेस पता है, आइसोबैरिक व्हेन q इक्वल्स टू h प्लस व्हाट वी से प्लस w। वर्क डन अगर जीरो है तो जो चेंज इन एनर्जी है और चेंज इन हीट है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। तो आई कैन राइट q इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। दिस इज इक्वल्स टू delta h is enthalpy, delta q is equals to delta h and delta h is denoted by mcp delta t। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड विच इज इक्वल्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, ये दो चीजें हो गई कि फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन वर्क डन इज जीरो, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन होल्ड। बट ये चीज कब मैटर करेगी? ये चीज़ तब मैटर करेगी जब फेज चेंज ना हो, बिकॉज इन केस ऑफ फेज चेंज, अगर फेज चेंज हो रहा है और ये टी एस डायग्राम पे मैं प्लॉट करूं तो इसके बीच में है मान लीजिए फेज चेंज, सो देयर इज सम ड्राइनेस फ्रैक्शन व्हेन यू ट्रांसफर द दिस मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम 1 to 2, सो देयर इज अ हीट ट्रांसफर। और वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, m डॉट जो यहाँ पर मास है x इंटू एच जी एच एफ जी, दिस विल कवर दिस मच x इंटू एच एफ जी हो गया ये जो हीट ट्रांसफर टोटल है लेटेंट हीट, एंड इंटू एक्स ये ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लग गया हीट का लॉस और हीट का ट्रांसफर। देन सी पी डब्ल्यू इज फॉर वाटर और यू कैन डायरेक्टली राइट सी पी इंटू डेल्टा टी। सो इफ आई राइट दिस इज 3 सो इट विल कवर सी पी डेल्टा टी। ओके ये वाला तो हम इस तरीके से लिखेंगे फॉर फेज चेंज। मैनी ऑफ यू मस्ट हैव नोन दिस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। दिस इज on this topic many times if you see the previous year engineering services question, so many questions have been asked on this topic. Okay, so the first is direct contact type heat exchanger. Direct contact type means as the name suggests, direct contact type जैसे ही बोल दिया तो नेम सजेस्ट हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट कहाँ से आ सकता है? मैं आई हैव ऑलरेडी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कूलिंग टावर। So cooling tower, the evaporative exchange, heat transfer exchange between your body and the flowing air, that is also direct contact type. Then jet condenser is also a type of a direct contact type. So you can see this is a cooling tower. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक ट्यूब होता है जहाँ से हॉट जो वाटर है उसका स्प्रे किया जाता है इन एयर। यहाँ से एयर आ रही है। ओके, यहाँ पर हम फैन यूज़ करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड फैन यूज़ करते हैं ताकि एयर को अंदर पुश कर सके। ओके, यहाँ से एयर गई जो कि कोल्ड एयर है, ये इसके साथ कांटेक्ट में आया, कम्स इन कांटेक्ट, एयर विल यहाँ पर जो रहेगा एवोपरेट हो जाएगा कुछ, यहाँ पर जो ये जो हॉट वाटर है कुछ एवोपरेट हो जाएगा जिसके कारण एवोपरेटिव कूलिंग हो जाएगी। सो जो एयर बाहर निकलेगा वो हॉट एंड ह्यूमिड एयर रहेगा क्योंकि उसने कुछ वाटर वेपर को गेन कर लिया है। एंड इट इज़ कोल्ड वाटर जो नीचे है, जो ये वाटर आएगा उसका टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड वाटर डजंट मीन योर फ्रिज कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ये इनिशियल कितना टेम्परेचर है, 100 तो नहीं होगा, सॉरी 70 डिग्री सेल्सियस, 100 पे तो खुद ही ऑपरेट हो जाएगा। तो 70 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस 70 डिग्री सेल्सियस दिस इज अ कोल्ड वाटर, पर 50 डिग्री सेल्सियस फॉर अस इन अ जनरल टर्म इज हॉट वाटर। सो उस टर्म में मत जाइएगा कि कोल्ड वाटर मीन्स बिल्कुल चिल्ड कोल्ड वाटर। नाउ द सेकेंड टाइप इज डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्लूइड इज थ्रू अ वॉल विच सेपरेट देम। मतलब एक वॉल है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हीट एक्सचेंजर हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, हीट एक्सचेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो उस टाइप को बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, सरफेस कंडेंसर, सुपर हीटर, एयर प्रीहीटर, रेडिएटर, देन एयर कूलर, देन सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ये सब जो है इसके टाइप हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यू विल लर्न इन पावर प्लांट। ओके, इसके अंदर जनरली पाइप यूज्ड होता है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर है। नाउ द थर्ड टाइप इज रीजनरेटिव स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेटिव? जो कुछ चीज़ वापस जनरेट हो रही है बार बार, उसको हम रीजनरेटिव बोलते हैं। सो आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल। लेट्स से ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हॉट फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है
और हॉट फ्लूइड यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड एंटर हो रहा है यहाँ से, एंड कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एग्जिट हो रहा है। एंड ये जो रेड रेड है ये सेलुलोज मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टोल्ड लेट डिस्कस व्हाट इज सेलुलोज मैट्रिक्स। इट इज़ अ हाई हीट कैपेसिटी सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज हाई हीट कैपेसिटी सब्सटेंस? हाई हीट कैपेसिटी मतलब टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस यू रिक्वायर मोर हीट। ओके, जैसे एक एयर है और एक वाटर है, यहाँ पर एयर आ गया, यहाँ पर वाटर हो गया। एयर की हीट कैपेसिटी कितनी है? अभी हमने डिस्कस की थी 1.05, इसकी आती है 4.186, समटाइम समवेयर इट इज़ गिवन 4.2 क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो अगर मैं एयर का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहूँ सो आई हैव टू गिव 1.005 किलो जूल पर के जी। अगर मैं वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहूँ सो आई हैव टू गिव 4.186 किलो जूल पर के जी। सो हाई हीट कैपेसिटी किसकी है? इसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड चाहिए वाटर को विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर इज अ हाई हीट कैपेसिटी सब्सटेंस। सो यहाँ पर वो ये सेलुलोज वाटर से काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो उसका हाई हीट कैपेसिटी यूज़ करते हैं। हाई हीट कैपेसिटी हम यूज़ क्यों करते हैं पहले ये देखिए। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको कहीं से मान लीजिए एक जगह पर 100 kg कुछ सामान रखा है, ओके, नाउ यू कैन ओनली लिफ्ट 10 kg, सो यू हैव टू means you will take 10 times to transfer that substance, right, to of 100 kg substance from one place to another place. But a bodybuilder comes and he can lift 100 kg at a time, so उसको एक ही बार लगेगा, उसका जो कैपेसिटी है ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर इफ़ हॉट फ्लूइड और इसमें 1 फ्लूइड फ्लो एट अ टाइम, अगर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये वाला लॉक होगा। ओके, ये वाला जो है यहाँ पर ये ऐसे लॉक होता है, ठीक है। अगर कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ से ऐसे लॉक रहेगा। ओके, सो व्हेन हॉट फ्लूइड फ्लोज, ये जो है सेलुलोज मैट्रिक, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हॉट फ्लूइड से। ओके, हॉट फ्लूइड से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले मैक्सिमम जितनी कर सकते हैं। तो हॉट फ्लूइड यहाँ पर थोड़ा कोल्ड हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। व्हेन कोल्ड फ्लूइड एंटर्स, अब इसका जो टेम्परेचर है सेलुलोज मैट्रिक्स का, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन द कोल्ड फ्लूइड, तभी हीट एक्सचेंज कोल्ड फ्लूइड उससे हीट लेगा, नहीं तो कोल्ड फ्लूइड भी उसको हीट देकर चला जाएगा। तो कोल्ड फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू सेलुलोज इज ऑल्सो हॉट फ्लूइड, तो मतलब ही नहीं रह गया। सो कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर इज लेस देन सेलुलोज। सो कोल्ड फ्लूइड जब फ्लो होगा तो उससे मैक्सिमम हीट वापस ले लेगा और फिर वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। ओके, सो ये इसका कंसेप्ट है कि एक बार में एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, 1 फ्लूइड फ्लो एट अ टाइम, और जब भी एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, जो एनर्जी सेलुलोज को हम दे रहे हैं वो चल रहा है। ओके, सो इसका एक ड्रॉबैक है कि डिसकंटिन्यूटी इन फ्लूइड फ्लो, राइट। फर्स्ट एक 1 एट अ टाइम एक बार हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फिर हम रोक रहे हैं, देन वी स्टार्ट द कोल्ड फ्लूइड, सो डिसकंटिन्यूटी है ना, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन फ्लो। सो ये एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक रोटेटिंग मैट्रिक्स टाइप रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है। व्हाट हैपेंस इन दिस, यहाँ से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, राइट, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए हॉट फ्लूइड फ्लो हुआ तो ये जो सेलुलोज हैं इन्होंने दे गेन द हीट, राइट। नाउ ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है इसने रोटेट जब हुआ तो ये वाले सेलुलोज इस साइड आ गए, राइट, ये वाले सेलुलोज इस साइड आ गए और ये वाले सेलुलोज इधर चले गए। तो ये वाले सेलुलोज अब कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए और कोल्ड फ्लूइड आउट, तो कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए तो वो कोल्ड फ्लूइड उनसे हीट हो जाएगा, और जो नीचे वाले कोल्ड ऑलरेडी कोल्ड हैं जिनका टेम्परेचर डाउन हो ऊपर चले गए तो अगेन दे विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉट फ्लूइड। सो ये कंसेप्ट है यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, बट देयर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज अटैच टू दिस, दैट इज चांसेस ऑफ मिक्सिंग। क्योंकि जो भी चीज़ रोटेट हो रही है आप कंप्लीटली यू कैन नॉट, क्या बोलते हैं उसको, अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ कोल्ड फ्लूइड इन द हॉट फ्लूइड रीजन एंड हॉट फ्लूइड इन द कोल्ड फ्लूइड रीजन। तो जो सीलिंग है वो कंप्लीट सीलिंग कभी नहीं हो सकती 100%। ओके, और देर इज चांसेस, देर इज ऑलवेज चांस। ओके, अब इसका जो एक एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है इसका, जुंगस्टॉर्म एयर प्री हीटर दैट इज़ यूज्ड इन गैस टर्बाइन। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम एंड वेयर यू हैव heard this. So it is related to regenerative storage type Ljungstrom, where it is used in gas turbine. बस इतना ही याद रखना है। Okay, now there is also classification of direct transfer heat exchanger. direct transfer heat exchanger में हमने पढ़ा था कि जो both hot and cold fluid do not come into contact with each other, but the transfer of heat occurs between
देन थ्रू पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन। ओके, और जनरली जो पाइप हम यूज़ करते हैं वो हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर आवर फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पाइप of the heat exchanger is very thin and used made from copper or aluminum, so that we can neglect its conductive resistance, which is L by K, or in the case of in the case of cylinder it is a logarithmic, right? तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, और ये चीज़ मैंने आपको बोला था वी विल लिंक इट इन द हीट एक्सचेंजर। सो नाउ first type is parallel flow heat exchanger. What is parallel flow heat exchanger? Hot and cold fluid flow in the same direction, similarly parallel flow. Okay, now counter flow heat exchanger, as name suggests, hot and cold fluid flow in opposite direction. Cross flow heat exchanger, as name suggests, they will flow in cross, so flow is in perpendicular direction with respect to each other. Shell and tube heat exchanger उसका एक अच्छा टाइप है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर भी एक अच्छा टाइप है। इफ़ यू सी द ऑटोमोबाइल रेडिएटर, इफ देर इज अ दिस इज अ ऑटोमोबाइल, ओके, रेडिएटर कहाँ पे लगा होता है? यहाँ पे रेडिएटर लगा होता है। एयर का फ्लो कैसे होता है? ऐसे एयर का फ्लो होता है, और यहाँ पर हमारा इंजन होता है। सो यू कैन सी ये रेडिएटर है, रेडिएटर में वाटर यहाँ से आता है, फिर ऐसे घूमता है, इसको कूल करता है, देन ये ऐसे होता है। तो रेडिएटर में जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, एंड जो एयर का फ्लो है इस डायरेक्शन में है। सो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में देन वी विल फाइंड डिस्कस अबाउट द मीन टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट इज LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन, and there is a LMTD derivation of LMTD for counter flow heat exchanger and parallel heat exchanger, both are same, and they are having the special thing, so we will discuss about that. And उसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर, हाउ वी विल डिज़ाइन बेस्ड ऑन टू मेथड, LMTD मेथड एंड NTU मेथड। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कमेंट so that we can improve certain things. Okay, there is always a chance of improvement. If you are not able to understand my writing, please listen what I am saying. और मेरी राइटिंग इतनी ख़राब तो नहीं है, मुझे यहाँ तक लगता है ख़राब है पर इतनी ख़राब नहीं है, so you can understand it. Okay, and please try to draw all the diagrams and try to make the notes as lectures is going on. ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको आप में रहनी चाहिए. Okay, so take care and prepare well.